سے پہلے آپ کو بتائیں گے تخت پنجاب کس کا؟ وزیر اعلیٰ کے لیے انتخاب کل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے اجلاس ڈپٹی سپیکر کی زیر صدارت ہوگا۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے چیف جسٹس کا فیصلہ برقرار رکھا۔ چودھری پرویز الہی اور کامل علی آغا کی انٹرا کورٹ اپیلیں نمٹا دیں۔ عدالت نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو ہدایت کی کہ وہ شفاف انتخابی عمل کے لیے مکمل معاونت کریں۔ جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس جواد حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سپیکر پرویز الہی اور مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری کامل علی آغا کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ڈپٹی سپیکر اپنے عہدے کے حلف کے پاسدار رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب شفاف اور غیر جانبدار انداز میں کروایا جائے۔ عدالت نے آئی جی کو ہدایت کی کہ آپ نے سیکورٹی کو دیکھنا ہے۔ چیف سیکرٹری نے آئی جی کی معاونت کرنی ہے۔ تمام معاملات قانون کے مطابق کرنے ہیں۔ سماعت کے دوران ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے کہا کہ اسمبلی کی تاریخ میں ایسی آمریت کی مثال نہیں ملتی۔ اسمبلی کو نوگو ایریا بنایا گیا۔ کچھ ممبران کو معطل اور کچھ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ جو کوئی اپنی مرضی کر لے، آئین آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ انتخابات کے دن میڈیا اور پلڈاٹ کو اسمبلی کارروائی تک رسائی دی جائے۔ عدالت اپنے نمائندے کو بھی اسمبلی میں مبصر کے طور پر بھیجے۔ میں چاہتا ہوں کہ معاملہ شفاف انداز میں سب کے سامنے رہے۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اور 5 بجے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے درخواستیں نپٹا دیں۔ سنگل بینچ کا ڈپٹی سپیکر کے اختیارات بحال کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اسپیکر کا اختیار استعمال نہیں کر سکتے۔ اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر ماورائے آئین اقدام کرے گا تو آئینی دائرہ اختیار میں عدالت اس پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ آئین اسپیکر کی کسی ایسی رولنگ کو تحفظ نہیں دیتا جو اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے دی گئی ہو۔ ڈپٹی اسپیکر اختیارات بحالی کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار اسپیکر کا اختیار استعمال نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کل صبح 11:30 بجے ہوگی۔ ڈپٹی سپیکر سردار دوست مزاری نے میڈیا کو کوریج کی اجازت دے دی۔ متحدہ اپوزیشن کے ارکان کا سوئس ہوٹل میں اکٹھ حمزہ شہباز نے لیگی اور اتحادی ارکان کو حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ ادھر چودھری پرویز الہی کی ریاض فتیانہ، محمود رشید، راجہ بشارت اور مراد راز سے مشاورت۔ پارلیمانی اجلاس میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ارکان نے پرویز الہی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ صبح 11:30 بجے ہوگی۔ ڈپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری نے میڈیا کو کوریج کی اجازت دے دی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس رائل سوئس ہوٹل میں ہوا۔ وزارت اعلیٰ کے امیدوار حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس میں علیم خان گروپ، جہانگیر ترین گروپ، اسد کھوکھر گروپ، اعظم معاویہ سمیت دیگر اتحادی بھی شریک ہوئے۔ پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کے حوالے سے حکمت عملی طے کی گئی۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ہفتے کی صبح 9 بجے تمام ارکان اکٹھے پنجاب اسمبلی کے لیے روانہ ہوں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف اور کاف لیگ کے امیدوار چودھری پرویز الہی سے ایم این اے ریاض فتیانہ نے ملاقات کی۔ پرویز الہی نے میاں محمود رشید، راجہ بشارت اور مراد راز سے بھی مشاورت کی۔ پرویز الہی کی زیر صدارت کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس بھی ہوا۔ تمام ارکان نے پرویز الہی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پنجاب کے قائد ایوان کا انتخاب، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس کے ساتھ رینجرز اور اسپیشل کمانڈوز تعینات ہوں گے۔ متحدہ اپوزیشن کو ہوٹل سے اسمبلی تک فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی۔ ڈپٹی سپیکر سمیت کسی رکن اسمبلی کو نہیں روکا جائے گا۔ چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، پنجاب اسمبلی کے ارد گرد 500 میٹر تک دفعہ 144 نافذ، قانون شکنی پر سخت کارروائی ہوگی۔ پنجاب کے قائد ایوان کا انتخاب، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر لیے گئے، پولیس کے ساتھ رینجرز اور اسپیشل کمانڈوز تعینات ہوں گے۔ شہزاد سلیم دوبارہ ڈی جی نیب لاہور تعینات کر دیے گئے۔ نیب لاہور کے سابق ڈی جی جمیل احمد کو نیب ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چیئرمین نیب نے تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے۔ شہزاد سلیم دوبارہ ڈی جی نیب لاہور تعینات کر دیے گئے۔ نیب لاہور کے سابق ڈی جی جمیل احمد کو نیب ہیڈ کوارٹرز رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چیئرمین نیب نے تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار، وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول مہنگا کرنے کی سمری مسترد کر دی۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کی سمری بھیجی گئی تھی۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल महंगा करने की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की समरी भेजी गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से इस समरी को मुस्तरद किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल महंगा करने की समरी मुस्तरद कर दी है। ओगरा की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की समरी भेजी गई थी। महंगाई के मारों के लिए नई मुश्किल। बिजली 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। आवाम की जेब से अरबों रुपए निकाले जाएंगे। नेपरा को फरवरी के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 94 पैसे इजाफे की दरखास्त दी गई थी। नेपरा ने कमाल मेहरबानी करते हुए सार्फिन को पूरे 9 पैसे का रिलीफ दिया और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 85 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी। सार्फिन से अप्रैल के बिलों में फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट वसूल की जाएगी। पता नहीं और कुछ क्या क्या इजाफा होगा ना, ये बेसिकली जो शबखून मारा है बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये अभी खाली आप बिजली ना देखें, अभी आप पेट्रोल देखें, फिर कल को आप मजीद आप जैसे आते साथ ही कुछ चीनी महंगी होगी और अभी फिर उन्होंने फिर बिजली महंगी कर दी है। बिजली के नर्ख बढ़े हैं। पिछली बार जो हुकूमत ने कम किए थे वो बेसिकली एक किस्म का धोखा दिया गया था आवाम को, और चूँकि IMF का जो सिस्टम है उसके तहत तो ये कम कर नहीं सकते थे उनके साथ जो इनके एग्रीमेंट्स है। आवाम तो जो है पहले महंगाई में पिसी हुई है, तो इसमें यह है उसे गौर करना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट। अब ये चेंज जो आई है तो ये पॉजिटिव चेंज आनी चाहिए। ये गैर मुल्की बैंकों की जानिब से लिए गए कर्ज पर आयद शरह सूद बढ़ने लगी। इस माली साल में हुकूमत को कर्ज की अदायगी पर शरह सूद की मद में 8 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। गैर मुल्की बैंकों से लिए गए कर्ज पर रवां माली साल में पंजाब हुकूमत अपने मजमूई कर्ज से 36 अरब रुपए की किस्त अदा करेगी। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई कर्ज में 36 अरब की किस्त के साथ 8 अरब रुपए की शरह सूद भी शामिल है। नए माली साल में जनवरी से जून तक हुकूमत अब तक 36 अरब रुपए की किस्त अदा करने के लिए तैयारियां कर रही है। पंजाब में मजमूई तौर पर कर्जों का हजम 10 खरब रुपए से जायद हो चुका है। इस कर्ज की वापसी के लिए मजीद 40 साल और दरकार हैं। LDA ने शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला तैयार किए गए मंसूबे एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की नई प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर के मौके पर ब्रीफिंग दी जाएगी। LDA इंजीनियरिंग विंग 1 ने मंसूबे की नई 3D वीडियो पर तैयारी शुरू कर दी है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे को दोबारा शुरू करने के लिए बुज़दार सरकार ने भी काम किया था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने काबीना में मंसूबे की मंजूरी दी, जबकि मंसूबे को दोबारा शुरू करने के लिए LDA गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दी। मंसूबे की लागत 30 अरब से 61 अरब पर ले जाने की मंजूरी भी दी गई। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे साबिक DG अहमद खान चीमा का ब्रेन चाइल्ड था। गुलबर्ग से बाबू साबू मोटरवे तक 10.6 किलोमीटर ट्रैक तामीर किया जाना है। मौजूदा तामीराती मटेरियल के रेट्स के बायस मंसूबों की लागत में तीसरी मर्तबा भी इजाफा मुतवक्के है। चीफ इंजीनियर 1 इसरार सईद का कहना है कि मंसूबा शहर की ट्रैफिक के लिए लाइफ लाइन और फाइनेंशियल तौर पर खुद इन्हासारी पर मुश्तमिल है। इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक मंसूबे के लिए 6 अरब रुपए से जायद फंड्स खर्च किए जा चुके हैं और लैंड एक्विजिशन भी की जा चुकी है। पंजाब असम्बली की नई तामीर शुदा इमारत की तज़ीन व आराइश का मामला। इंतजामिया की जानिब से टेंडर से मुतालिक अहम दस्तावेजात हुकूमती टीम को फराहम न करने का इंकशाफ हुआ। DGMND की जानिब से पंजाब असम्बली की नई इमारत पर रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब असम्बली की इंतजामिया ने बेशतर सरकारी दस्तावेजात फराहम नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर से मुतालिक दस्तावेजात मटेरियल के म्यार पर लैब टेस्टिंग रिपोर्ट मुहैया नहीं की गई। इमारत की तज़ीन और आराइश पर सिर्फ अखराजात की मालूमात दी गई है। नई इमारत का हुस्न निखारने के लिए मजमूई तौर पर 39 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट खर्च किया गया। 28 करोड़ 25 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा गया। 3 करोड़ 87 लाख रुपए फानूस पर खर्च किए गए। कारपेट की खरीदारी पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए। पर्दे लगाने पर 1 करोड़ 74 लाख रुपए, पेंटिंग और पोर्ट्रेट पर 1 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए गए। PTI हुकूमत के साबिक वज़रा और मुशीरान की जानिब से सरकारी वसाइल का बेदर्दी से इस्तेमाल। काबीना की तहलील के बाद अब तक सरकारी गाड़ियां वापस नहीं की गईं। साबिक वज़रा और मुशीरान से गाड़ियां ज़बरदस्ती वापस लेने का इक़दाम शुरू कर दिया गया। महकमा SNGAD ने साबिक हुकूमती वज़रा और मुशीरान से गाड़ियाँ वापस लेने का इक़दाम शुरू कर दिया है। महकमा SNGAD की जानिब से साबिक वज़रा और मुशीरों को गाड़ियाँ वापस करने के लिए कॉल्स की जा रही हैं। गाड़ियाँ वापस न करने वाले साबिक वज़रा से ज़बरदस्ती गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी। साबिक वज़रा 15 दिन गाड़ियाँ रख सकते थे, जो आज पूरे हो चुके हैं।
पंजाब पुलिस के लिए नई वर्दियों की खरीदारी महंगाई की नज़र हो गई। गुज़श्ता साल की निस्बत 30% बजट बढ़ गया। 2,70,000 यूनिफॉर्म्स की खरीदारी मुमकिन ना हो सकी। पंजाब पुलिस के जवानों और अफसरों के लिए नई वर्दियों की खरीदारी में महंगाई आड़े आ गई। रवां साल 2 कंपनियों निशात और अरशद ब्रादर्स ने फाइनेंशियल बिड के लिए क्वालिफाई किया। एक वर्दी का कम से कम रेट भी 3,000 रुपए से ज्यादा है, जबकि गुज़श्ता साल एक वर्दी 2,200 रुपए में खरीदी गई थी। वर्दी की खरीदारी के लिए गुज़श्ता माली साल को मद्देनजर रखते हुए बजट रखा गया, जो मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर दर्जे अव्वल घी और ऑयल की किल्लत है। कतारों में खड़े सारिफीन मतलूबा अशिया न मिलने पर फट पड़े। हुकाम से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर बनाए हैं तो अशिया की दस्तयाबी भी यकीनी बनाई जाए। शहरी सस्ते दामों अशिया ज़रूरियत की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, लेकिन माह मुबारक में भी इन स्टोर्स पर अशिया का फुकदान है। ताजपुरा, गढ़ी शाहू, धर्मपुरा, जोड़े पुल, शालीमार लिंक रोड, मुगलपुरा, गुलबर्ग, मुल्तान रोड, समनाबाद, गुलशगावी समेत दीगर इलाकों के स्टोर्स पर दर्जे अव्वल घी और ऑयल दस्तयाब नहीं है। सारिफीन ने शिकवा किया है कि इन्हें तीसरे दर्जे का घी और ऑयल खिलाकर सेहत के मसाइल में मुब्तला किया जा रहा है। जब आप एक दिन में एक पैकेट देंगे तो पूरा महीना लोगों ने निकालना है, तो दूसरी दफ़ा जब आप कहेंगे जी आपकी शनाख्ती कार्ड पे आटा घी नहीं मिलेगा, तो फिर आप एक भी ना दें। घी किसी को नहीं पसंद, किसी को नहीं लगता। ऑयल होना चाहिए, सस्ता ही ऑयल रख लें, शान ऑयल रख लें, उसका रेट कम कर लें। पहले रोजे से यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लगी लाइनों में कोई कमी नहीं आई। सारिफीन स्टोर्स इंतजामिया के नामुनासिब रवैये का शिकवा करते भी नजर आते हैं। ऑयल नजर ही आ रहा है, ना ऑयल ना घी, ये हल्की क्वालिटी का पड़ा हुआ, यही अब जो मिलेगा यही लेके जाएंगे हम। रस भी इतना है कि 2-3 घंटे इधर खड़े ही रहते हैं। ये सब 2 चीज़ें लेनी होती हैं बस। लाहौरियों ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की किल्लत का नोटिस लिया जाए और गफलत के मरतकब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिजात खान अब्दाली, सिटी 42। सरकारी स्कूलों में टेक्स्ट बुक बोर्ड के अलावा प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाए जाने का इंकशाफ हुआ। महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिस, बच्चों को खुलासा जात और हेल्पिंग बुक्स पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। बेशतर स्कूलों में इम्तहानात के नाम पर बच्चों को खुलासा और हेल्पिंग बुक्स फरोख्त की जा रही हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले का सख्त नोटिस लिया है। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूलों में सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से फराहम की गई मुफ्त किताबें पढ़ाई जाएंगी। प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें किसी सूरत फरोख्त करने की इजाजत नहीं होगी। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज को हिदायत भी जारी कर दी है। एजुकेशन अथॉरिटीज अहकामात न मानने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट की पॉलिसी असातिज़ा के लिए दर्द सर बन गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए कवायद व ज़वाबित के खिलाफ जमा करवाई गई हज़ारों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। असातिज़ा नई हुकूमती पॉलिसी के बायस परेशान हो गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नई पॉलिसी के तहत हजारों असातिज़ा की कबल वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। असातिज़ा ने नए रूल्स के मुताबिक आगाही न रखते हुए प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई थी। कवायद व ज़वाबित के मुताबिक असातिज़ा 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट पॉलिसी पर पूरा नहीं उतरे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए असातिज़ा को फौरी नौकरी पर हाजिर होने का हुक्म दे दिया है। ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिरी पर नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला जारी कर दिया है। एजुकेशन अथॉरिटीज ने भी असातिज़ा को दरख्वास्तें मुस्तरद होने पर उन्हें हाजिर होने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत की तब्दीली, सरकारी हस्पतालों की निस्कारी भी रुक गई। MTI एक्ट का निफाज सर्द खाने की नज़र, म्यू हस्पताल का कायम बोर्ड ऑफ गवर्नर तहलील, नए बोर्ड की तश्कील भी रोक दी गई। हुकूमत की तब्दीली के साथ साथ सरकारी हस्पतालों की निस्कारी भी रुक गई। MTI एक्ट का निफाज सर्द खाने की नज़र हो गया। म्यू हस्पताल का कायम बोर्ड ऑफ गवर्नर तहलील कर दिया गया, जबकि नए बोर्ड की तश्कील भी रोक दी गई। पंजाब हुकूमत की बौखलाहट, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का DG तैनात करके एक दिन के बाद ही ओहदे से हटा दिया। सैयदा मलाइका को 24 घंटे के बाद बदल दिया गया। नया DG तैनात कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ सैयदा मलाइका को DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तैनात किया था, ताहम आज सैयदा मलाइका की बतौर DG तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का एक और नया DG तैनात किया गया है। इत्तला के मुताबिक फारूक रशीद DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तैनात हुए हैं। फारूक रशीद ग्रेड 19 के PMS ऑफिसर हैं। इसके बारे में महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
निजी होटल में तहरीक इंसाफ के 24 मुनहरिफ अरकान असम्बली की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने पुलिस को PTI के अरकान के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जमा कराने के लिए 18 अप्रैल तक मोहलत दे दी। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने रहनुमा तहरीक इंसाफ सब्तैन खान की दरख्वास्त की समाअत की। SSP लीगल लाहौर अदालत में पेश हुए और अदालत को आगाह किया कि तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान से राबता हुआ है। दोनों मेंबरान कहते हैं उन्हें किसी ने कैद नहीं किया है। जस्टिस मोहम्मद वहीद ने कहा कि आप दीगर मेंबरान के हवाले से भी रिपोर्ट पेश करें। दरख्वास्त में हमजा शहबाज शरीफ और CCPO लाहौर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तहरीक इंसाफ के 24 MPAs को गैर कानूनी तौर पर रखा गया है। अरकान सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। अदालत से इस्तदा की गई है कि CCPO लाहौर को हुक्म दिया जाए कि मेंबरान सूबाई असम्बली को बाजियाब करवा कर अदालत में पेश करे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से गुफ्तगू की गई। कायदे अवाम के चुनाव में परवेज़ इलाही की कामयाबी का दावा किया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में चौधरी परवेज़ इलाही को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद में अभी से दाल बनना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में एक बार फिर भरपूर ताकत बनकर उभरेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इदारों पर हमलावर होने की तारीखी हक़ाइक़ को झुटलाया नहीं जा सकता। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे पर तहरीक इंसाफ का एहतजाजी प्लान जारी। तहरीक इंसाफ लाहौर ने कल लिबर्टी चौक पर मुजाहरे की कॉल दे दी। तहरीक इंसाफ के दफ्तर में साबिक सूबाई वज़रा मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ समेत दीगर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ कल लाहौर के लिबर्टी चौक में स्क्रीन लगाकर इमरान खान का कराची में जलसे से खिताब आवाम को दिखाएगी। 21 अप्रैल को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने फौरी आम इंतखाबात कराने पर जोर दिया। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान का बयान खुशाइंद है। अदलिया, फ़ौज और इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए। सिराजुल हक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में आवाम को रिलीफ दें। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत में न घसीटें, मुल्क को अमन और रवादारी की तरफ लेकर जाना चाहिए। जामिया मस्जिद बहरिया टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान की अफवाज और इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया उसकी मजम्मत करते हैं। सिख यात्रियों की लाहौर आमद के सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया लाहौर के इंतजामात मुकम्मल। DC लाहौर कहते हैं सिख यात्री 17 अप्रैल को बैसाखी मेले के सिलसिले में गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर आएंगे। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, हेल्थ, पार्किंग कंपनी, लेस्को, सिविल डिफेंस, LWMC और औकाफ के अफसरान ने शिरकत की। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने बताया कि 1900 से ज़ायद सिख यात्री भारत और पूरी दुनिया से लाहौर आएंगे। जर्मन सिफारत खाने के वफ्द का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। नायब सदर हारिस अतीक से मुलाकात की। 2 तरफा तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफ्द में जर्मन सिफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी क्रिश्चियन बोइचर और ओलिव हेमिस शामिल थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में होने वाली मुलाकात में 2 तरफा तिजारती और मुआशी सूरत हाल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर हारिस अतीक ने कहा कि जर्मनी यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी मईशत है जिसकी GDP $3.8 ट्रिलियन से ज़्यादा है। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान इंतहाई खुशगवार सिफारती ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क मुस्तहकम तिजारती शराकतदार हैं। नायब सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि 2 तरफा तिजारत में इजाफा अच्छी बात है। SP हेडक्वार्टर्स की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में गुड फ्राइडे और ईस्टर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। SP हेडक्वार्टर मोहम्मद अवैस मलिक ने लाहौर पुलिस की जानिब से मसीही मुलाजमीन में ईदी तकसीम की। इंस्पेक्टर गजाला शरीफ और लाइन ऑफिसर मोहम्मद शाहिद समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में पुलिस लाइन्स के दर्जा चहारुम के मुलाजमीन में बतौर ख़ास शिरकत की। SP हेडक्वार्टर मलिक मोहम्मद अवैस ने
کرسچین ملازمین کو گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کی مبارکباد دی۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر کا کہنا تھا کہ مسیحی ملازمین لاہور پولیس کا اہم حصہ ہیں۔ نیشنل بینک آف پاکستان اور ویوز سنگل پاکستان لمیٹڈ کے مابین انکلیو کم قیمت ہاؤسنگ پروجیکٹ کی فائنینسنگ کے لیے دستخطی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب پی سی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ نیشنل بینک آف پاکستان نے ویو سنگل پاکستان لمیٹڈ کی جانب سے تعمیر کیے جانے والی سستی اسکیم ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے 1500 ملین روپے کی منظوری دی۔ تقریب میں گروپ چیف آف کارپوریٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ گروپ رحمت علی حسنی، ریجنل کارپوریٹ ہیڈ شاہد چودھری، ڈویژنل ہیڈ عابد علی شریک ہوئے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر WSL ہارون احمد خان، چیف فائنانس آفیسر ارسلان شاہد سمیت نیشنل بینک آف پاکستان اور ویو سنگل پاکستان لمیٹڈ کے درمیان دیگر نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ پراپرٹی مارکیٹنگ کمپنی اسٹار مارکیٹنگ کے زیر اہتمام لاہور پی سی میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اسلم گل سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ افطار میں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اسلم گل، حافظ غلام محی الدین، امیر العظیم، محمد اقبال خان، لیگی رہنما بابا گلہ، معروف کالم نگار مجیب الرحمان شامی، ابرار الحق اور اداکار غلام محی الدین نے شرکت کی۔ اشرف خان، خالد بٹ، اسٹار مارکیٹنگ کے چیف ایگزیکٹو واسق نعیم، ایگزیکٹو ڈائریکٹر تصدق حسین، ریجنل ڈائریکٹر غیاث انور، علی حبیب اور یاسر رشید شریک ہوئے۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل بزنس طارق آفریدی، امجد اسلام امجد، شفیع نکی جامی، سید سرمد علی، نشو بیگم اور شاہد نذیر بھی موجود تھے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے زیادہ اشاعت اور طباعت بھی ماہ مقدس میں ہوتی ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کے مراحل کے بارے میں آگاہ کر رہی ہیں کومل اسلم۔ سارا سال دنیاوی کاموں میں مگن رہنے والے بھی رمضان المبارک میں تلاوت کلام پاک کی سعادت ضرور حاصل کرتے ہیں۔ ماہ مبارک میں قرآن پاک کی اشاعت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ خطاطی، پروف ریڈنگ اور پرنٹنگ کے مراحل سے گزر کر قرآن پاک کی اشاعت ہوتی ہے۔ ان تمام مراحل میں زبر، زیر، پیش، شد، مد کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ کسی غلطی کا امکان نہ رہے۔ پہلے سادہ بالکل آتا تھا ایک کلر کا، اب 4 کلر قرآن پاک پرنٹ ہو رہے ہیں، تو اس میں ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کاغذ بھی اچھا ہو تو 4 کلر پرنٹنگ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اگر کاغذ اس میں ناقص لگائیں گے تو پرنٹنگ کام نہیں کرتی اپنا۔ سیاہی بھی اس پہ ہم بہت اچھی یوز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے لیے ری سائیکل پیپر کے استعمال پر پابندی ہے۔ مختلف کمپنیاں خوبصورتی لانے کے لیے نفیس کاغذ اور رنگوں کا استعمال کرتی ہیں، جبکہ کاریگروں کو سختی سے پابند کیا جاتا ہے کہ وہ طباعت اور اشاعت کے تمام مراحل میں باوضو ہو کر شریک ہوں۔ اس کو لوگ اصحال ثواب کے لیے اپنے والدین کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں رکھتے ہیں، اصحال ثواب کے لیے اور صدقہ خیرات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے اور رمضان کے حوالے سے تو اس کی لاکھوں میں تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس میں جو بھی مراحل آتے ہیں، ہمارے جو لڑکے ہیں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہ کتاب سر چشمہ ہدایت ہے، اس پر عمل میں ہی دائمی کامیابی ہے۔ قرآن پاک کی اشاعت اور طباعت کے کئی مراحل ہیں اور ہر مرحلہ قاری اور خدا کے درمیان کے تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ کومل اسلم، City 42۔ رمیز راجہ استعفیٰ دو۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سابق ٹیسٹ کرکٹر رمیز راجہ پر عہدے سے مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھنے لگا۔ رمیز راجہ استعفیٰ دو ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ شائقین کرکٹ اور کرکٹ کے سٹیک ہولڈرز کی بڑی تعداد نے رمیز راجہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ رمیز راجہ پر چیئرمین پی سی بی کا عہدہ چھوڑنے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی مستعفی ہونے کی مہم جاری ہے۔ رمیز راجہ کے استعفے کو لے کر شائقین کرکٹ کی جانب سے دلچسپ تبصروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ملک میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند ہونے سے ہزاروں کرکٹر بے روزگار ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 3 برس سے کلب، ڈسٹرکٹ اور ریجنل کرکٹ بھی غیر فعال ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔